Namaste. I, Gurpreet Kaur, the literary captain of the school, welcome you all in the morning assembly of St. Vivekanand Millennium School, HMT Township, Punjab. Today is 24th December 2020. Firstly, I would like to invite Principal Sir to address us with his inspiring words. Namaste. A very good morning to all of you. I hope you all must be with the best of health and happiness at your homes, staying healthy. Today I have come to wish you all for two occasions. One is Christmas and the other is Gita Jayanti. Without doubt, Christmas is a fantastic time. The promise of peace, goodwill, and growing sense of excitement and expectation makes this time of year a very special indeed. However, the question must be asked, what is truly the message of Christmas? As our gospel tells us, Jesus Christ, the living message of peace and goodwill, was born in a stable because there was no room for Mary or Joseph. They were about to give birth, and yet, at a time of great expectation for them, the only small mercy offered was a stable with the animals. These expectant parents were excluded and outcast. Was this the best that could be done for the impending birth of the person who promised us so much? The message this child brings to the world is one of unconditional love and acceptance. He welcomes all human beings in all their great variety as children of God. He believes in their essential goodness and loves them all. This love is not held back or reluctant. It is spontaneous, unquestioning, and all embracing. Christmas is certainly a time for celebration with those that we love and hold most dear. So I wish you all a Merry Christmas. Have a gala time. Enjoy the festival. 25 दिसंबर को इस वर्ष मोक्षदा एकादशी पड़ रही है। उस दिन हम गीता जयंती मनाते हैं। गीता कर्म की अवधारणा को अभिव्यक्त करती गीता चिरकाल से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना तब रही। विचारों को तर्क दृष्टि के द्वारा बहुत ही सरल एवं प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया है। संसार के गूढ़ ज्ञान तथा आत्मा के महत्व पर विस्तृत एवं विशद वर्णन प्राप्त होता है। गीता में अर्जुन के मन में उठने वाले विभिन्न सवालों के रहस्यों को सुलझाते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें सही एवं गलत मार्ग का निर्देश प्रदान करते हैं। संसार में मनुष्य कर्मों के बंधन से जुड़ा है और इस आधार पर उसे इन कर्मों के दो पथों में से एक किसी का चयन करना होता है। इसके साथ ही परमात्मा तत्व का विशद वर्णन करते हुए अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हुए गीता का आधार बनता है। मैं आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं गीता में जो हमारे लिए दिया गया है हम उसे अपने जीवन में अमल करेंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। आप सबको पुनः गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले नव वर्ष के लिए भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इस साल तो हमारा वर्ष जैसा भी गया है अगला वर्ष अच्छा वर्ष बने और हमने जो इस वर्ष खोया है उसे हम प्राप्त कर अपनी इस कमी को पूरा कर सकें। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much, sir.
Now, I would like to invite our Sanskrit teacher, Acharya Sunil Dutt Gautam, to share today's Panchang with us. नमस्ते। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2077, शक संवत 1942, आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। सौर प्रविष्टि की यदि बात की जाए तो आज पौष माह के 10 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह जमद उल अव्वल की आज 8 तारीख है। कल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता जयंती की शुभकामनाएं आपको हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी द्वारा दी जा चुकी है एवं इसको विस्तार से 8वीं कक्षा की छात्रा लावण्य द्वारा बताया जाएगा। धन्यवाद। Thank you, sir. Now, I request all of you to join your hands and cover your heads to start today's prayer. All classes be ready for Gayatri Mantra. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। All classes be ready for prayer. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोचे लखवार चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरया पार। सह सियाणपा लख होए तां इक न चले नार। किव सचियारा होइए किव कूड़े तुट्टे पार। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाए। हुक्मी होवन
मंजी हुक्म मिले वड्याई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए इक ना हुक्मी बख्शीश इक हुक्मे सदा पवाइए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कहे न कोए। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ओम शांति 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 ओम। Be ready for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Gita Jayanti is celebrated all over the world by the devotees of Lord Krishna. Devotees observe a fast on this day as it is also known as an Ekadashi day. So, to throw some more light on this Gita Jayanti Mahotsav, I would like to invite Divyansh Piplani of class 8th A. नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है। मैं सेंट विवेकानंद मिलेनियम विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष गीता जयंती के विषय में कुछ बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। गीता जयंती का प्रमुख पर्व है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में गीता का स्थान सर्वोपरि रहा है। 25 दिसंबर 2020 के दिन गीता जयंती का महोत्सव मनाया जाएगा। गीता ग्रंथ का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए गीता का आगमन होता है। इस ग्रंथ में छोटे छोटे 18 अध्यायों में संचित ज्ञान मनुष्य मात्रा के लिए बहुमूल्य रहा है। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर कर्म का महत्व स्थापित किया। इस प्रकार अनेक कार्यों को करते हुए एक महान युग परिवर्तक के रूप में सभी का मार्गदर्शन किया। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के साथ साथ मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के नाम के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी दिन गीता जयंती होने से श्रीमद् भगवद गीता की सुगंधित फूलों द्वारा पूजा कर गीता का पाठ करना चाहिए। विधि पूर्वक गीता व भगवान विष्णु की पूजा करने पर यथाशक्ति दानादि करने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गीता जयंती के दिन श्री विष्णु जी का पूजन करने से उपवासक को आत्मिक शांति व ज्ञान की प्राप्ति होती है व मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। गीता जयंती कथा। कर्म की अवधारणा को अभिव्यक्त करती गीता चिरकाल से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना तब रही। विचारों को तर्क दृष्टि के द्वारा बहुत ही सरल एवं प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया है। संसार के गूढ़ ज्ञान तथा आत्मा के महत्व पर विस्तृत एवं विशद वर्णन प्राप्त होता है। गीता में अर्जुन के मन में उठने वाले विभिन्न सवालों के रहस्यों को सुलझाते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें सही एवं गलत मार्ग का निर्देश प्रदान करते हैं।
संसार में मनुष्य कर्मों के बंधन से जुड़ा है और इस आधार पर उसे इन कर्मों के दो परतों में से किसी एक का चयन करना होता है। इसके साथ ही परमात्मा तत्व का विशद वर्णन करते हुए अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हैं, वह गीता का आधार बनते हैं। गीता जयंती महत्व। गीता आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। कृष्ण के उपदेशों को प्राप्त कर अर्जुन उस परम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं जो उनकी समस्त शंकाओं को दूर कर उन्हें कर्म की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होती है। गीता के विचारों से मनुष्य को उचित बोध की प्राप्ति होती है। यह आत्मा तत्व का निर्धारण करता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के समय में इस ज्ञान की प्राप्ति से अनेक विकारों से मुक्त हुआ जा सकता है। आज जब मनुष्य भोग विलास, भौतिक सुखों, काम वासनाओं में जकड़ा हुआ है और एक दूसरे का अनिष्ट करने में लगा है, तब इस ज्ञान का प्रादुर्भाव उसे समस्त अंधकारों से मुक्त कर सकता है, क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दास्ता में है, भौतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है तथा भय, राग, द्वेष एवं क्रोध से मुक्त नहीं है, तब तक उसे शांति एवं मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Thank you, Divyansh. Now it's time for Shloka's recitation. For this, I would like to invite Naman of class 9th A and Ansh of class 10th B. नमस्ते, मैं अंश कुमार कक्षा 10वीं ब का छात्र आज आपके समक्ष गीता जयंती के उपलक्ष्य में श्लोकों का उच्चारण करने जा रहा हूँ। पहला श्लोक यह है: तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मे वैश्यं संशयम्। अर्थात जीवन है तो संघर्ष साथ रहेंगे ही। संघर्षों में मन घबराए, उकताए नहीं, मनोबल मजबूत रहे, इसी के लिए यह गीता प्रेरणा है। जीवन संघर्षों में भगवान का स्मरण बना रहे। ईश्वरीय ध्यान स्मरण जीवन की ऊर्जा, शक्ति, शांति और बल मजबूत संबल है। मन बुद्धि भगवान को अर्पित अर्थात साथी एवं जीवन रथ के सारथी भगवान, चिंता मिटेगी, सफलता मिलेगी। दूसरा श्लोक यह है: आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्थात मुस्कुराती मानवता का महानतम आदर्श है यह गीता मंत्र। ईश्वरीय चेतना में सम है। इस दृष्टि से सबके साथ अपनापन, किसी को सुखी देखकर प्रसन्नता, दुखी देखकर स्वयं को पीड़ा, परम योगी की गीता दिव्यता, साकार होने पर क्यों होगा भ्रष्टाचार, अत्याचार। तीसरा श्लोक यह है: मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अर्थात प्रकृति ईश्वर द्वारा संचालित है। प्रकृति के साथ ईश्वरीय आस्था जुड़ने से प्रकृति सम्मान पाएगी, प्रदूषण कम होगा। प्रकृति या समूची सृष्टि परिवर्तन के चक्र में है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता अधिष्ठान है। वैज्ञानिक प्रामाणिकता का ग्रंथ है भगवद गीता। बिना किसी स्थिर सत्ता के परिवर्तन का चक्र चल ही नहीं सकता। यह सर्वमान्य तथ्य है। चौथा श्लोक यह है: सन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मानेव सर्वभूतहिते रता। अर्थात व्यक्तित्व विकास में अद्भुत व्यापक निखार का मूल मंत्र है यह गीता श्लोक। खाने पीने, बोलने, देखने आदि में स्वयं की स्थिति, प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों में समता एवं विशेष रूप से समस्त प्राणियों के प्रति हित चिंतन, सर्वभूत हितो रता जैसे आदर्श गीता वाक्य सिद्ध करते हैं कि यह ग्रंथ हिंदुओं की आस्था तो है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं,
समग्र प्राणी जगत के कल्याण की अनूठी वैश्विक प्रेरणा है। पांचवा श्लोक यह है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मनभावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। अर्थात कितना प्रेरक भावार्थ है इस गीता श्लोक में। बिना भेदभाव के समूची सृष्टि प्रजा ईश्वरीय भाव संकल्प से अर्थात सब एक ही ईश्वर के हैं उससे है। सृष्टि के प्रारंभ में ऋषि मुनु, फिर आगे प्रजा। इसका अभिप्राय ऋषियों की त्याग तप परहित की परंपरा जीवन का आधार बनने और मानव है। मानव बनकर रहें, मानवता का सम्मान करें। नमस्ते, मैं नमिन शर्मा, कक्षा 9वीं बी का छात्र। आप सभी को गीता दिवस के उपरांत पर कुछ श्लोकों का उच्चारण आप सभी के समक्ष करने जा रहा हूँ। पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवर्त संजय। अर्थात भेद बुद्धि पश्चाताप पूर्ण संकीर्ण सोची वैमनस्य विद्वेष कलह क्लेश का मूल कारण है। समबुद्धि उदार सोच कर्म को ही धर्म बना सकती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का लाक्षणिक अभिप्राय यही है। दूसरा श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित निष्ठा प्रमाद कुतो ही लापरवाही नहीं। मुझे क्या मिलेगा यह सोच कृपण संकीर्ण बनाती है, क्षमताओं को कमजोर करती है। मैं क्या दे सकता हूँ यह भाव बनाकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े, अनुभव करे मानसिक संतुष्टि, क्षमताओं का विकास करें, सामाजिक सम्मान एवं ईश्वरीय कृपा करें। तीसरा श्लोक। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यं कर्तुमर्हसि। अर्थात कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए अच्छा आदर्श आवश्यक है। लोक संग्रह के भाव से कर्म हो, आस्तिक निज हित अथवा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, परहित जनहित अथवा लोकहित की व्यापक सोच बनाए। राजा जनक का उदाहरण इसी भाव से है। चौथा श्लोक। एवं ज्ञात्मा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वत्रं कृतम्। अर्थात अपने अपने क्षेत्र का समृद्ध अतीत देखें, जिन्होंने अच्छे संकल्प, अच्छी कर्तव्य निष्ठा के साथ अच्छे आदर्श प्रस्तुत किए, अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया, आदर्श प्रेरणा के रूप में अपना नाम बनाया। ये गीता मंत्र अनूठी प्रेरणा है। अपने कर्म एवं जीवन यात्रा को उसी पथ पर हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। पांचवा श्लोक। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमिवावसा। अर्थात कर्म करते हुए अहंकार बुद्धि नहीं, ईश्वर कृपा का आधार, ईश्वर कृपा से मुझे इस पद या द्वैत्व के रूप से समाज, राष्ट्र एवं मानवता की सेवा का सौभाग्य मिला है, ऐसा भाव रखना चाहिए। किसी व्यक्तित्व
अथवा भ्रम वातावरण की बुराई का प्रभाव अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। अपनी अच्छाई की सुबास वातावरण में रहना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पानी या कीचड़ में रहते हुए कमल का फूल। धन्यवाद। आपको गीता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you, Naman and Ansh. Christmas is an annual festival commemorating the birth of Jesus Christ. It is observed primarily on 25 December as a religious and cultural celebration among billions of people around the world. Now, to add to our knowledge some more facts about Christmas Day, I would like to invite Vaturi Suhasini of class 8B. Namaste, I am Vatturi Suhasini, a student of class 8B from St. Vivekanand Millennium School. Today I am going to share some information about Christmas. Christmas is an annual festival commemorating the birth of Jesus Christ, observed primarily on December 25th as a religious and cultural celebration among billions of people around the world. Although the month and date of Jesus' birth are unknown, the church in early 4th century fixed the date as December 25th. It is celebrated religiously by a majority of Christians as well as non-Christians. According to the prophecies, Jesus was born in Bethlehem in a stable to Mother Mary. For Christians, believing that God came into the world in form of man to atone for the sins of humanity, and this is considered to be the primary purpose in celebrating Christmas. Popular customs of the festival include gift giving, cards, church services, special meal, Christmas carols, Christmas trees, lights, decorations, and of course waiting for Santa Claus to arrive. As you all know, tomorrow is Christmas, so I wish you all Merry Christmas. Have a wonderful day. Thank you. Thank you, Vaturi Suhasini. Now, to know about today's word of the day, I would like to invite Purva Arya of class 8th A. नमस्ते, मैं पूर्वा आर्या 8वीं श्रेणी की विद्यार्थी सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल चिमटे टाउनशिप पिंजौर तो बोल रही हूँ। आज का शब्द है मजबूत। मजबूत दे समानार्थक शब्द हैं बलवान, पक्का, ठोस, सख्त, कठोर, ताकतवर, तगड़ा। मजबूत दे विरोधी शब्द हैं कमज़ोर, नरम, ढीला, नाजुक, कोमल। वाक है मजबूत, आत्मविश्वास। मजबूत सोच नाल ही असी हर काम विच सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपका दिन चंगा बीते। धन्यवाद। Thank you, Purva Arya. That's it with our today's assembly. We wish to Almighty God for your good health. Stay home, stay safe. Namaste.